Good morning, students. How are you? I hope all of you are fine and you are enjoying your studies at your home, and even whatever work we are giving you, you are learning that work every day, up to date, properly. Okay. Now I am going to explain you the chapter 1 paragraph. Okay. You can see in the behind on behind beside me. Beside me, what you can see the picture of the paragraph. So keep concentration on the paragraph, listen to me what I am pronunciating the word, and if you won't understand anything, you can means if you are having any doubts by messaging or by anything else, you can ask me. Okay, so let's start now. Now today we are going to read the page number 3 of your chapter 1. Okay, which page number? Page number 3. Those who are having the textbooks, they can take out the textbooks, and those who are not having the textbooks, please keep concentration on the board. Granny pleaded, why do you disturb him? What happened? Already I have said you, there was a means what was going on there when Swaminathan father said him that you have to sleep alone in the office room. At that time, the Swaminathan tried to change the matter, he tried to change the subject. But then also what his father said, whatever he was talking about the admission in the cricket, in the group of the cricket, his father said we will think about that later. Now let us discuss about what I said, that you have to, he gave the order to him that he has to sleep today in his office room. Then only he will come to know that how much courage he has. Okay, now after that, when he was sad, when he came and slept there, at the time his granny said, pleaded means निवेदन किया, why did you disturb him? क्यों तुमने इसको परेशान किया? ये सो रहा था. Get up, Swami. He said for the third time, and Swami got up. Swaminathan's father said, get up for 3 times. At the last third time, Swami got up. Come with me. At that time his father said, come with me, कि मेरे साथ आओ. 3 बार स्वामीनाथन के पिताजी ने ये कहा कि स्वामी उठ जाओ, स्वामी उठ जाओ. 3 बार कहा. तीसरी बार जैसे उन्होंने कहा, स्वामी उठकर बैठ गया. फिर उन्होंने उसको आदेश दिया कि तुम मेरे साथ चलो. Swami looked at his granny, hesitated for a moment, and followed his father into the office room. Swami looked at his granny. जैसे ही वो उठकर चलने के लिए उन्होंने कहा, तो स्वामी किसकी तरफ देखने लगा? वो अपनी दादी की तरफ देखने लगा. Hesitated for the moment, वो आगे बढ़ने के लिए क्या कर रहा था? हिचक रहा था. क्यों हिचक रहा था? क्योंकि वो अकेला सोना नहीं चाहता था, उसे डर लग रहा था. And followed his father into the office room. फिर उसने क्या किया? वो अपने पिताजी के पीछे पीछे ऑफिस रूम तक पहुंचा. ऑन द मीन्स जा रहा था वो, जैसे जैसे उसके पिताजी आगे बढ़ रहे थे उनके साथ साथ वो चला गया. On the way he threw a look of appeal at his mother, and she said, why do you take him to the office room? He can sleep in the hall, I think. On the way, जैसे ही वो आगे बढ़ रहा था तो उसकी मम्मा उसे दिख गई, तो उसने एक अपील यानी एक निवेदन किया. मीन्स इशारे से ही उसने निवेदन की, याचना की उसकी माँ से. तो उसकी माँ ने स्वामीनाथन के पिताजी से ये कहा कि तुम इसको ऑफिस रूम में मीन्स कक्षा गृह में क्यों कार्यगृह में क्यों लेके जा रहे हो? ये हॉल में भी तो सो सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है, मैं सोच रही. I don't think so, father said, and Swami slunk behind him with a bowed head. I don't think so. उसके स्वामीनाथन के पिताजी ने क्या जवाब दिया कि मुझे ऐसा नहीं लगता कि उसे हॉल में सोना चाहिए. स्वामी को क्या करना चाहिए? वहीं पर जाकर सोना, ऑफिस रूम में ही सोना चाहिए. तब स्वामी क्या कर रहे थे? वो अपने सिर को नीचे झुकाकर वहां से चुपचाप निकल गए. लेट मी स्लीप इन द हॉल फादर, स्वामी प्लीडेड. अब स्वामी बोलता है धीरे धीरे, जैसे वो आगे बढ़ता है तो स्वामी अपने पिताजी से ये कहता है कि पिताजी मुझे हॉल में सो जाने दीजिए. योर ऑफिस रूम इज वेरी डस्टी एंड देयर मे बी स्कॉर्पियंस बिहाइंड योर लॉ बुक्स. तभी वो क्या कहता है कि पापा मुझे ऑफिस रूम के बजाय यही हॉल में ही सो जाता हूँ मैं. आपका जो ऑफिस है उसमें बहुत सी धूल पड़ी हुई है, और यहाँ तक कि हो सकता है कि आपकी जो लॉ बुक्स है, कानूनी किताबें जो है, उनके पीछे क्या होगा?
उनके पीछे क्या है? स्कॉर्पियंस मीन्स बिच्छू होंगे शायद. देयर आर नो स्कॉर्पियंस लिटिल फेलो, स्लीप ऑन द बेंच इफ यू लाइक. देयर आर नो स्कॉर्पियंस. स्वामीनाथन के पिताजी ने उसको वापस जवाब दिया, वहां पर कोई स्कॉर्पियंस यानी बिच्छू नहीं है. अगर तुम चाहते हो तो तुम बेंच पर सो सकते हो. कैन आई हैव ए लैम्प बर्निंग इन द रूम? तो अब स्वामीनाथन पापा से, उनके पिताजी से ये कहता है कि क्या मैं एक चिमनी या चिराग इस रूम में रख सकता हूँ? नो, यू मस्ट लर्न नॉट टू बी अफ्रेड ऑफ डार्कनेस. नहीं, तुम्हें सीखना होगा क्या? अंधेरे में रहना. इट इज ओनली ए क्वेश्चन ऑफ हैबिट. ये एक प्रश्न है किस चीज का? आदतें डालने का. यू मस्ट कल्टिवेट गुड हैबिट्स. तुम्हें क्या होनी चाहिए? अच्छी आदतें. तुम्हें अपने अंदर अच्छी आदतों को विकसित करना चाहिए. विल यू एटलीस्ट लीव द डोर ओपन? क्या आप इस ऑफिस रूम के दरवाजे को तो क्या खुला छोड़ दोगे पिताजी? स्वामीनाथन ने अपने पिताजी से पूछा. ऑल राइट. तो उनके पिताजी ने कहा चलो ठीक है. बट प्रॉमिस यू विल नॉट गो टू योर ग्रैनी साइड एट नाइट. तो फिर तुम वादा करो मैं दरवाजा खुला छोड़ दूंगा, लेकिन तुम रात में जाकर अपने दादी के बगल में नहीं सोओगे. इफ यू डू इट, माइंड यू, आई विल मेक यू द लॉफिंग स्टॉक ऑफ योर स्कूल. अगर तुमने ऐसा करने की कोशिश की तो मैं क्या करूंगा? तुम्हारी स्कूल में तुम्हारा क्या बनाऊंगा कि सब लोग तुम पर हंसे. ऐसा तुम्हारे साथ मैं करूंगा. तुम्हें लॉफिंग स्टॉक बना दूंगा जिस पर हर कोई व्यक्ति हंसता है. ऑल राइट. स्वामीनाथन फेल्ट कट ऑफ फ्रॉम ह्यूमैनिटी. ही वॉज पेन्ड एंड हैंग्री. स्वामीनाथन को महसूस होने लगा क्या? कि उसके पापा में मानवता नाम की चीज ही नहीं, मनुष्यता ही नहीं रही. He was pained and angry. Sorry, it is angry. He was pained. वो अंदर ही अंदर उसको क्या हो रहा था? दर्द महसूस हो रहा था और उसे गुस्सा भी आ रहा था. He did not like the strain of cruelty he saw in his father's nature. उसे क्या पसंद नहीं था? उसके पिताजी के बर्ताव में जो उसे एक तनाव सा दिखाई दिया. किस चीज का तनाव? क्रूरता का तनाव जो उसके पिताजी में दिखाई दिया, वो उसे नापसंद करता था. He hated the newspaper for printing the tiger story. उसे क्या, वो किसको नापसंद कर रहा था? किसको हेट कर रहा था? उस अखबार को जिसमें टाइगर की कहानी मीन्स बाघ की कहानी छिपी हुई थी, छप गई थी. He wished that the tiger hadn't spared the boy. Why didn't appear to be a boy? After all, but a monster. He wished that the tiger hadn't spared the boy. वो क्या कर रहा है? आशा कर रहा है कि ऐसा होता कि टाइगर जो है वो उस लड़के को डराता ही नहीं. Why did not appear to be a boy? या फिर वो उस लड़के के सामने ही नहीं आता. After all, but a monster. लेकिन एक राक्षस के रूप में तुम आ गए. As the night advanced and the silence in the house deepened, his heart beat faster. जैसे जैसे वो रूम में अकेले ही सोच रहा था तो क्या हुआ? जैसे ही रात हुई, जैसे जैसे रात बढ़ती गई, क्या हुआ? घर में सन्नाटा सा छा गया. तो घर में जैसे सन्नाटा छाया, क्या हुआ? धीरे धीरे घर में सब लोग थे लेकिन सभी अपने अपने कमरों में थे. वो ऑफिस रूम में अकेला था, जिससे वो अकेलेपन से वो डरता है, अंधेरे से वो डरता है. तो उसकी जो दिल की धड़कनें थी वो क्या होने लगी? तेज होने लगी डर से. He remembered all the stories of devils and ghosts he heard in his life. उसने अपने जीवन में जो भी शैतानों की या प्रेतों की कहानियां उसने अपने जीवन में सुनी थी, वो पूरी ही वो क्या करने लगे? स्वामीनाथन जो थे वो याद करने लगे. A ray of light from the street lamp strayed in the cast shadows on the wall. A ray of light. A ray of light means जो लाइट की जो एक किरण थी, रोशनी थी, जो रास्ते में एक लाइट जो होता है, जो खंबा होता है जिसमें लाइट लगाई जाती है, स्ट्रीट्स पे होते हैं ये लाइट्स, तो उसकी रोशनी क्या हो रही थी? दीवार पर आकर उसकी छाया गिर रही थी. थ्रू द स्टिलनेस मीन शांति के माध्यम से. ऑल काइंड्स ऑफ नॉइजेस रीच्ड हिज ईयर्स. मीन्स जैसे सन्नाटा था, अंधेरा था, तो क्या हुआ? वहाँ पर बहुत ज्यादा शांति थी. तो आवाजें जो थी वो उसकी कानों तक पहुंच रही थी. किस चीज की? जैसे कि द टिकिंग ऑफ द क्लॉक.
जो घड़ी है उसकी जो टिक टॉक वाली आवाज है वो उसके कान तक जा रही थी, वो सुन रहा था। द रस्टल ऑफ द ट्रीज, यहाँ तक कि पेड़ों की जो सरसराहट सी आवाज आती है जब हवा चलती है या हल्की सी हवा भी चल जाती है तो पेड़ों में सरसराहट होती है, तो उस सरसराहट की आवाज भी स्वामीनाथन के कानों में पहुंच रही थी। स्नोरिंग साउंड्स, स्नोरिंग साउंड्स का मतलब होता है खर्राटे की आवाजें, वो आवाजें भी उन्हें सुनाई दे रही थी। एंड सम वेक नाइट इंसेक्ट्स हमिंग, और यहाँ तक कि रात के जो इंसेक्ट्स जो होते हैं, कीड़े जो होते हैं, उनकी बिनबिनाहट भी उन्हें सुनाई दे रही थी। He covered himself so completely that he could hardly breathe. फिर उसने क्या किया, स्वामीनाथन ने क्या किया, अपने आप को पूर्ण तरीके से उन्होंने ढक लिया। Every moment he expected the devils to come and carry him away. बार बार वो क्या आशा कर रहे, वो क्या सोच रहे थे, उन्हें ऐसा लग रहा था कि डेविल्स यानी भूत प्रेत आएंगे और मुझे उठा के यहाँ से ले जाएंगे। स्वामी hurriedly got up and spread his bed under the bench and crouched there. स्वामीनाथन वहां से तुरंत उठे और उन्होंने अपना बिस्तर बेंच के नीचे जो बेंच होता है, टेबल होता है, उसके नीचे की तरफ उन्होंने अपने बिस्तर को फैला दिया और क्या किया, क्राउच्ड देयर मींस झुक गए। किस तरीके से झुक गए, जैसे कि अपने घुटनों को बेंड द नीज एंड ब्रिंग द अपर बॉडी डाउन, जैसे घुटनों पे झुककर जब कोई छोटा बच्चा चलता है ना, वैसे। It seemed to be a much safer place, more compact and reassuring. उन्हें लग रहा था, स्वामीनाथन को क्या लग रहा था कि ये जगह जो है वो बहुत ही ज्यादा सुरक्षित है और ठोस है, जो उन्हें ऐसा उनमें बार बार साहस महसूस हो रहा है वहां पर कि मैं यहाँ पर सुरक्षित हूँ। He shut his eyes tight and unknown to himself fell asleep. उन्होंने अपनी आंखों को बहुत टाइटली, जबरदस्ती से बंद कर लिया, फिर अपने आप को ऐसा महसूस कराया कि जैसे कि कोई भी नहीं है, कोई अनजान भी यहाँ पर नहीं है, और सोने की कोशिश की, मतलब अपने आप को ये महसूस करवाया कि मैं सो रहा हूँ। एंड इन स्लीप अ टाइगर वॉज चेजिंग हिम, और ऐसा उन्हें जैसे उनको नींद आई है, जैसे ही वो सोने लगे तो उनको क्या हो रहा था, ऐसे लग रहा था कि टाइगर यानी बाघ जो है वो उनके सामने उनको बार बार छेड़ रहा है। His feet stuck to the ground. उनके जो पैर थे वो कैसे, जैसे उनको नींद आने लगी तो होता ही है कि जब हम तो क्या हो गए, stuck to the ground, यानी जाकर जमीन पर stuck हो गए। Okay students, what you have to do, you have to read the paragraph properly and learn the previous word meanings I have given you in the previous classes. Okay, have a nice day.